Again, a very good afternoon to each one of you. What a captivating morning we all have had, and there is much more to come. I'm CA Rashi Mantri, and I'll be taking you along this session. Can I have the AV of the session, please? Session 3. Unlocking potential. It infers turning your should into must and creating that ultimate belief in yourself. Taking the learning curve forward, may I request the session chair, Mr. Manoj Jain, MD, Shri Ram Life Insurance, to escort our speakers for the session, Mr. Ramchandra Agrawal and Mr. Rajesh Mittal, to the dais, please. 2 days of knowledge sharing, learning, and networking have surely paved our path to unlock the potential of Bharat and definitely our future. Please welcome Mr. Ramchandra Agrawal and Mr. Rajesh Mittal. May I request Mrs. Shikha Jain to welcome Mr. Ramchandra Agrawal, Chairman and MD, V2 Retail Limited, with a plant sampling. I now request Dr. Vivek Kushwa, Director, IBMR IPS Academy, to welcome Mr. Rajesh Mittal, MD, Isuzu Motors India Limited, with a plant sampling. A leader is born when there comes the need for crisis management. To enlighten us on this and much more, we have with us our speaker, Mr. Ramchandra Agrawal. Can I have the AV of Mr. Ramchandra Agrawal, please? Mr. Ramchandra Agrawal is the Chairman and Managing Director of V2 Retail Limited. He is the trailblazer in modernizing the Indian retail industry. In 1994, Ramchandra Agrawal established the first value fashion retail chain in India, expanding it to 100 stores across Tier 2 and 3 cities. He achieved the first ever retail IPO in India and led client-listed retail entity to a valuation of Rs 1,000 crores. Mr. Agrawal pioneered technology adoption. Ram implemented a global ERP system. He envisions V2 Retail Limited becoming one of India's finest value fashion omnichannel entities. Known for his simplicity, humility and disciplined approach, his leadership style is marked by perseverance and a commitment to turning challenges into opportunities. Beyond business, Ramchandra Agrawal is dedicated to social cause and nation building, advocating for collective responsibility and self-awareness. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Ramchandra Agrawal. The stage is all yours, sir. हेलो हेलो नहीं चलेगा ये चलेगा
मैं जब अपनी कंपनी में बोर्ड रूम में मीटिंग करता हूँ अपने कॉलीग के साथ, तो लोग बोलते हैं कि एनर्जी से भरा हुआ है रूम। तो एक बार मेरे को यहाँ इस हॉल की एनर्जी देखनी है, जो अपने 30 मिनट तक तालियां बजाते रहेंगे, देखते हैं एनर्जी है कि नहीं। मैं भी मेरे जीवन का पहले मिशन बताता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से मेरी ईश्वर से लड़ाई चल रही है, और मेरा मिशन शायद मेरे मरने तक पूरा होगा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा मिशन लेके चल रहा हूँ। और मेरा मिशन है क्वालिटी एंड हैप्पी लाइफ। मैं मानता हूँ कि अपना मनुष्य जीवन मंकी टू बुद्धा तक का सफ़र है। हम लोगों को ईश्वर ने पहले मंकी बना के भेजा, और धीरे धीरे हम अपना विजडम से बुद्धा वाला सफ़र तय कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम ये बुद्धा वाला हमारा माइंडसेट होगा, उतनी जल्दी जो मेरे क्वालिटी लाइफ का एक इन्विजन मैंने किया है, वो क्वालिटी लाइफ हमको मिलेगी। और वो क्वालिटी लाइफ का मेरी जो परिभाषा है, जिस दिन हमको एक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस दिन हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करेंगे, जिस दिन कोई पुतिन जैसा शासक किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर ऐसे हमला नहीं करेगा, मेरा मन कभी कभी करता है कि उसका कॉलर पकड़ के पूछे कि क्या विजडम हमारा कहाँ गया है, और पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है, और आपको मालूम है कि कितना तकलीफ हो रहा होगा। हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डेली कोई बीमारी, सिमारी, घरेलू प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, और जिस राष्ट्र के ऊपर डेली शहरों के ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, आप समझ सकते हैं उनकी क्या लाइफ होगी। हम बिजनेसमैन की क्या लाइफ है। आज यहाँ स्टेज पे हूँ, कल मेरे पास अचानक एक मेल आता है कि आपका बनारस सेल टैक्स वाले ने कोई मेल किया है आपके बैंक को, और हमारा बैंक का 75 करोड़ का अकाउंट को बोला फ्रीज कर दिया गया। और मेरे यहाँ 6000 लोग काम करते हैं, बोला आप एक पैसे का भी इससे टर्नओवर नहीं कर सकते। और वो बंदा, जो ऑफिसर से हमने बात किया, तो वो बंदा बोलता है कि आप अभी 2-2.5 करोड़ रुपए का डिमांड है, वो पूरा अभी जमा करिए, तब हम आपका फ्रीज हटाएंगे। तो हम, और आए दिन ये कोर्ट में जो हम लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट के बाहर लाइन लगा हुआ है, एक आदमी 10-10 साल से। मेरे एक जानकार है, उनका एक बच्चा है जो दहेज का उसके ऊपर कोई कानून लगा दिया गया है, और वो बच्चा का लाइफ खत्म हो गया उसमें। वो हर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में उसको यहाँ कोर्ट में आना पड़ता है कलकत्ता से। तो हम तरक्की की बात करते हैं, लेकिन अभी हमको सिस्टमेटिक चेंज चाहिए इस एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, और मेरी लड़ाई वही है। शायद ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई ऐसा उसके शासन में कोई ऐसा बंदा आए जो बुद्धा की बात करे, और वो इतना पावरफुल बने कि उसकी बात से इतना बड़ा चेंज आए, जहाँ की माल न्यूट्रिशन नहीं हो, जहाँ पॉल्यूशन नहीं हो। आज अपने तरक्की की बात करते हैं, आपने देखा है हमारे जो पॉल्यूशन इंडेक्स क्या है शहरों का। मेरे ख्याल से विश्व के सबसे पॉल्यूटेड 10 शहर हमारे इंडिया में हैं। तो केवल तरक्की की बात करने से मेरे को लगता है काफ़ी नहीं है। मैं बिजनेस की भी बहुत पॉइंट बना के मैंने लाया है, लेकिन मेरा गोल बिजनेस करने का यही है। बचपन से मेरा यही है कि मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ कि मेरी जो विचारधारा है वो पूरा विश्व माने, और पूरा विश्व शांति के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए हम आगे जीवन जिए। मैं थोड़ा हड़बड़ा के बोलता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे अंदर इतना पैशन है कि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत कुछ अपने अच्छे ढंग से जी सकते हैं, और मैंने कुछ उसके पॉइंट बनाए हैं। तो मेरे पॉइंट सबसे पहले चालू होते हैं, एक अच्छे जीवन के लिए हमको क्या चाहिए। हमको मंकी टू बुद्धा वाला सफ़र में सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है जीवन में, जो कि हम शायद डेली लाइफ में भूल जाते हैं। और जो गोविंद काका ने बोला, मैं बोलता हूँ, आज मैं भी 4-5 आपसे हाथ खड़ा करके, और उतने कड़े नहीं होंगे, आपको ड्राइवर की सैलरी नहीं 25,000 देनी पड़ेगी, या 50,000 आपको अपना सैफ को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये काम आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो, जो मैं बोलता हूँ। सबसे पहले मेरे को बताइए, कौन आधे घंटा हेल्थ के लिए देता है? अगर बिना अच्छे हेल्थ के लिए हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, तो कितने हाथ उठते हैं? अगर आधे घंटा, एवरेज में 4 दिन आधे घंटा हेल्थ के लिए कौन देता है? बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत इवॉल्व लोग हैं जो कि बुद्धा तक का सफ़र में बहुत आगे आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से मेरे 5-7 पॉइंट है। उसमें है कि भैया हम न्यूट्रिशन,
अपने खान पान में कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी जीभ पे कितना कंट्रोल है, हम एक्सरसाइज कितना करते हैं, हम सनलाइट कितना लेते हैं, हम सवेरे ग्रीन जूस पीते हैं क्या, हम फास्टिंग करते हैं क्या, मैं हफ्ते में 3-4 दिन वार्म एंड कोल्ड, पहले गर्म पानी से नहाता हूँ, फिर एकदम ठंड में ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो ये बहुत सारे, आप अभी तो मेरे ख्याल से अभी ये युग है इंफॉर्मेशन का युग, आप यूट्यूब में मारेंगे तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के लिए आपको हर चीज़ मिलेगी कि एक अच्छे, और बिना अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो जिनकी चेस्ट 36 या 38 या एक अच्छे बलवान व्यक्ति के जैसी होती होगी। तो मेरे ख्याल से अपने को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए कि अपना हेल्थ कैसे अच्छा रहे। बिना हेल्थ के हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छा नहीं जी सकते हैं। पहली बात हेल्थ, दूसरा है माइंड। ये जितनी प्रॉब्लम मैंने बोली ये सारा यहाँ से चालू होता है। अगर हम माइंड में अगर हम ध्यान रखें कि भैया मैं दूसरों के ऊपर मैंने कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे कोई आदमी दुखी हो, मैं कितना डिसिप्लिन हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 पॉइंट बना के लाया हूँ मैं, जो मैंने जिए हैं आज तक। मैं अभी 1 मिनट मेरे पॉइंट खोलता हूँ। पहला पॉइंट मेरा हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए मैंने जिया है। मैं 17 साल की एज से एक्सरसाइज करता हूँ और अभी भी मेरा दिनचर्या ये है कि हफ्ते में 3 दिन जिम जाता हूँ और सवेरे प्राणायाम करता हूँ हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन 3 दिन स्विमिंग करता हूँ और हॉट एंड कोल्ड स्पा करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज भी मेरे को लगता है कि किसी के भी कोई भी बंदा यहाँ पे मेरे ख्याल से 16 किलो का डंबल मेरे जैसे कोई नहीं उठा पाएगा चेस्ट प्रेस में। मेरी एज 59 ईयर्स ओल्ड है। एक बार ये डंबल वाली बात पे ताली बजाना बनता है नहीं बनता है? कोई और है जो इस एज ग्रुप में 16 किलो का डंबल चेस्ट पे उठा पाएगा? प्लीज एक बार खड़े होइए, देखते हैं आपका क्या एज है। हेलो, 51। मेरे एज ग्रुप 55 से 60 वाले ग्रुप में, दैट इज लाइफ। मैं हमेशा हट के जीवन जीना चाहता हूं। मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता हूं, मैं सबसे अच्छी जगह पे रहता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी एक पेन है जो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो पहली बात हुई हेल्थ, दूसरी बात हुई ट्रूथफुलनेस। मैं एक लाइन का उदाहरण देना चाहूंगा कि केवल ये बातें लिखने से नहीं होती है, मैंने जिया है इन बातों को। मैं ट्रूथफुलनेस के लिए बोलूंगा कि मेरी कंपनी में, विशाल मेगा मार्ट मेरी कंपनी का पहले नाम था, और उस कंपनी में 900 करोड़ का लोन था। तो और कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरे सीएफओ ने और मेरी टीम ने बोला कि भाई अभी ये जो आपका लॉसेस है ये मेरी एसबीआई में खाता था। तो मेरे को बोला गया कि भाई एसबीआई में मत बताओ कि आपका भी ये पोजीशन है। तो मैंने जाके और पहले दिन एसबीआई में जाके बताया कि भैया हमारा ये पोजीशन है। वो उन लोगों का ये था कि भाई एसबीआई फिर आपको और लोन नहीं देगा जिससे कि आप रिवाइव कर पाओ। लेकिन मेरा ट्रूथफुलनेस ये है कि मैंने एसबीआई में जाके बोला कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, और हालांकि मेरे को वो कंपनी बेचनी पड़ी, लेकिन मैंने जिया है ट्रूथ। मैं जीवन में, मेरे को याद नहीं है मैंने कभी झूठ बोला हो। तो और अभी भी जो बात बोल रहा हूँ मैं, एक बात भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो एक हो गया ट्रूथफुलनेस। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। एक है ऑनेस्टी। मेरी कंपनी जब मेरे को बेचनी पड़ी तो मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं आउट ऑफ वे जो खरीद रहे थे उनसे कुछ कच्चे में पैसा मिल सकता था मेरे को, और ये कंपनी को मैं मार सकता था। जो मेरी कंपनी का नाम है, पहले विशाल रिटेल लिमिटेड नाम था, और उस समय में मेरा शायद 50-55% स्टेक था, 45% पब्लिक में था। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इस कंपनी को मार दूं और वो जो बाकी के 45% स्टेक होल्डर्स हैं उनका पैसा जीरो हो जाए। लेकिन मेरी ऑनेस्टी ये थी कि मैंने बोला नहीं, मैं इसी कंपनी को रिवाइव करूंगा, और आज फिर उस कंपनी की वैल्यूएशन 1300 करोड़ रुपया है। नहीं, ये थोड़ा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, हर चीज मैंने जी है। एम्पैथी की बात है कि हम लोग एक घर, छोटे से घर में कलकत्ता में रहते थे। तो वहाँ मेरी शादी हुई थी। तो मेरी वाइफ बोलती थी, मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया था उस समय, तो मेरी वाइफ बोलती थी कि इस छोटे से रूम में इतनी गर्मी में गर्मी लगती है, एक एसी खरीद लेते हैं। तो मैंने मेरी वाइफ को यही बोला
कि पहले मेरे साथ काम करने वाले 4-5 लोग हैं जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, पहले उनके घर में एसी होगा तब मैं एसी खरीदूंगा। लीडरशिप मेरे ख्याल से अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, हैप्पी लाइफ जीना है, अच्छे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको लीडरशिप बहुत जरूरी है। और लीडरशिप आप खुद जी के, खुद आप उदाहरण बन के लीडरशिप दे सकते हो। तो हमेशा लीडर को खुद वैसा बनना पड़ता है जैसे जैसे वो अपनी टीम को करना चाहते हैं। लीडर को अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है। लीडर को 10 बातें अपनी टीम की छोड़नी पड़ती है कि भाई अगर उसमें 10 कमियां हैं और अगर एक भी अच्छाई है तो मैं पहले उसकी अच्छाई की बड़ाई करता हूं हमेशा, कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है, जिससे वो सारा दिन मोटिवेटेड रहे, उसको आगे अपने हर समय। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल से सब यहाँ बिजनेसमैन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए लाइफ में एक ही है कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आप बोलते हो यार मेरी टीम बेकार है, मेरी टीम का प्रोडक्टिविटी नहीं है, मेरी टीम काम नहीं करती है, मेरे को टीम मिलती नहीं है। तो इसका एक ही है कि आपके अंदर इतना अच्छा लीडरशिप होना चाहिए, आपको एक ऐसा कंटेंट डेवलप करना चाहिए जिससे कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो आप करवाना चाहते हो उनका KRA क्लियर है कि नहीं, और उनको ट्रेनिंग दे के और उनको मोटिवेट करके आप बहुत सिंपल लोग। मैं एक दिन नेशनल टेलीविजन में खड़ा करूंगा कि मेरे साथ जो 1996 में जो मेरे साथ 90 रुपया पर डे में चाय पिलाता था बंदा, वो अभी 2 लाख रुपया पर मंथ में काम कर रहा है मेरे अंडर में। और मैं ऐसे हजारों लोग खड़े कर सकता हूं किसी भी नेशनल टेलीविजन में जिनको आज इतनी तरक्की मिली। ऑर्डिनरी पीपल, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो गए? क्योंकि उनको हमेशा वो लीडरशिप मिला, वो ट्रेनिंग मिली, वो पीठ पे हाथ मिला। तो मेरे ख्याल से, और आज भी मेरी कंपनी, मेरे ख्याल से अभी रिटेल के जितने पैरामीटर्स है, रिटेल में 10 में से 8 पैरामीटर में हमारी कंपनी सबसे अच्छा कर रही है। और उसका एक ही रीजन है कि जो मैं बोल रहा हूं मैं उसको करने का चेष्टा कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि आप अगर इतने होशियार है तो अभी तक आप उस ऊंचाई पे क्यों नहीं गए जिस ऊंचाई पे आपको होना चाहिए? तो इसमें एक बात और मैं यहाँ लाना चाहूँगा कि मेरा बेटा अभी 32 साल का है, वो मेरे को ज्वाइन किया 10 साल हो गया, फिर वो धीरे धीरे मेरे साथ काम सीखा। तो मैं 2016-17 में भी पर स्क्वायर फीट सेल में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नंबर 1 सेल था पर स्क्वायर फीट सेल में, 2016-17 की बात है। फिर बेटा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो बेटा को मेरे ख्याल से आप लोग ये फेस करते होंगे कि जब आपका बेटा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि क्योंकि जनरेशन गैप है, उसका सोच एक यंग सोच है और हमारा एक एक्सपीरियंस सोच है, तो उसको लगता है कि मेरा बाप जो भी डिसीजन ले रहा है वो गलत है। तो वो मेरे डिसीजन पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उठाने लगा। तो कोई भी पुत्र मोह में या जो भी कारण से मैं बहुत ज्यादा डिसीजन, वो जो मेरा कन्विक्शन था वो डिसीजन मैं नहीं ले पाया। तो कोई कारण से 3-4 साल मेरी कंपनी बहुत अच्छा नहीं की। फिर बेटा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके 1.5 साल पहले मेरे को बोला कि मैं अभी 1 साल के लिए MBA करने जाना चाहता हूँ। हम बोला कोई बात नहीं, जाओ। और उसका जब मेरे को याद है, वो जब जा रहा था मैंने उससे एक ही वादा लिया कि तुम जा रहा है 1 साल में मैं कंपनी को पूरा टर्न अराउंड कर दूंगा, तो तू आके मेरे को ज्वाइन करेगा, क्योंकि मेरे को बहुत प्यार है उससे। तू मेरे को आके ज्वाइन करेगा और फिर मेरी बात मानेगा एज ए लीडर कि हाँ ये स्ट्रेटेजी जो बोल रहे हैं पापा वो सही है। तो वो बोला ठीक है। वो 1 साल गया और मैंने लिटरली 1 साल में, आप मेरे रिजल्ट अभी देखेंगे, लिटरली मेरा लास्ट क्वार्टर का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 43% के ऊपर था। एक मिनट पानी। मैंने जो भी ये पॉइंट लिखे हैं, मैं मानता हूं कि जो जीवन हमको बिजनेस लाइफ मिला है, मेरे ख्याल से ये जो भी पॉइंट मैंने बहुत सूक्ष्म में, मेरे ख्याल से 1.5 या 2 पेज का पॉइंट्स है, जो भी इसको मान लेगा, मेरे को लगता है ये मेरे खुद का जिया हुआ जीवन का पूरा फिलॉसफी है। और मेरे को लगता है ये गीता ऑफ मैनेजमेंट है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये गीता ऑफ मैनेजमेंट है, एम्पैथी है, लीडरशिप है। आपको हर समय क्यूरियस होना पड़ेगा हर बात के लिए कि कौन कैसे काम करता है, किसका जीवन कैसे चलता है। किसी से भी मैं मिलता हूं तो बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई इसके जीवन से मैं क्या प्रेरणा ले सकता हूं। तो क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
मैं 35 साल तक ऐसा बंदा हूं जो 35 साल तक ऑफिस में सबसे पहले आता था और सबसे लास्ट में जाता था। आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा। मैंने मेरे ख्याल से 2007-8 में मैंने मेरे ऑफिस का टाइमिंग सवेरे 8 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक का कर दिया था। अभी किसका किसका ऑफिस का टाइम सवेरे मॉर्निंग में 7:30-8 बजे चालू हो जाता है और 4:30 बजे खत्म हो जाता है? जरा हाथ उठाएं। और ये बात सही लगती है या गलत लगती है? केवल 2 लोग हैं। मेरे ख्याल से आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत समय मिलेगा लाइफ जीने के लिए, जिम जाने के लिए, रात को पिक्चर देखने के लिए, फैमिली के साथ समय गुजारने के लिए। मेरे ख्याल से आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा सवेरे जल्दी खोलने से। बहुत सारा क्विक डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को याद है जब मेरे विशाल मेगा मार्ट में लॉसेस होने लगे तो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे। मैंने बहुत बड़ा ऑफिस लिया था मानेसर में और उसका बहुत बड़ा खर्चा था। जब आपस में बात हो रही थी कि भाई कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, अभी लॉसेस हो रहे हैं, तो मैंने गाड़ी में डिसीजन लिया और गाड़ी में ही मैंने फोन कर दिया कि कल हम पुराने ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं, सारा शिफ्टिंग चालू कर दो। और दूसरे दिन मेरा शिफ्टिंग चालू हो गया था। इतना फास्ट कभी कभी आपको डिसीजन मेकिंग में होना पड़ता है। मेरे ख्याल से कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं इतना पैशनेट होके बोल रहा हूं, यू पीपल आर एंजॉयिंग, और कि नहीं मेरे को थैंक यू। सेल्फ बिलीफ और कन्विक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैं बहुत कन्विंस था। मैं बताता हूं, जब मेरे को कंपनी बेचनी पड़ी, मेरे को जरा सा भी ये नहीं लगा, मैं कभी भी अटैच नहीं हुआ मेरे बिजनेस के साथ। मैंने 121 दुकानें थी जब मैंने टीपीजी को बेचा और मैंने रात को उनको चाबी दिया। मेरे को बहुत लोग बोले तू कैसा फील कर रहा है? रात को 121 दुकानों की एग्रीमेंट हुआ, 121 दुकानों की चाबी दी और दूसरे दिन मैं अपना V2 रिटेल खोलने के लिए वापस V2 रिटेल के लिए काम करने लगा। मेरे को कोई तकलीफ मन में नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी मैं मानता नहीं हूं मेरा कुछ भी है, मेरी दुकानें हैं, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं बहुत डिटैच्ड आदमी हूं। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को जितना, ये बोलना बहुत ईजी है, लेकिन मेरे ख्याल से हर आदमी को जितना डिटैच्ड रहेगा, डिटैच्ड होके काम करेगा, मेरे ख्याल से उसको उतना तकलीफ कम होगा कभी भी। अब मैं डेली की बात करता हूं, हम लोग जो डेली भोगते हैं जीवन में। मेरे ख्याल से अब आप बोलेंगे आप अचानक आपका कंपनी इतना टर्न अराउंड क्यों हुआ? अब हमारा जो फोकस हुआ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सारी बातें मालूम पड़ती है। अब हमारा कोई भी प्रॉब्लम आता है, हम लोग रूट कॉज में जाते हैं। आप समझ लीजिए आपका कोई पड़ोसी आपके आंगन में डेली कचरा गिरा रहा है और आप उसको डेली साफ कर रहे हैं, आधा घंटा आपको सफाई में लग रहा है। आप ये पता करिए कि वो पड़ोसी आपके आंगन में कचरा क्यों गिरा रहा है। तो अभी मेरा पूरा थॉट प्रोसेस हो गया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जीवन में, पहले उसका रूट कॉज पता करो और उसको जड़ से खत्म करो। रूट कॉज एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज का सक्सेस के लिए। ईगो मेरा 0 है। अगर अभी आप लोग ताली नहीं भी बजाते और बोलते ये क्या बक रहा है उल्टा पुल्टा, तो ईगो जीवन में मेरे ख्याल से अपने बहुत सारा ये फियर के कारण आगे नहीं बढ़ते हैं कि हमको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब मेरी छोटी छोटी दुकानें थी, तो एक दिन मैं धर्मतला स्ट्रीट है कलकत्ता में, वहां से जा रहा था, तो मेरे को एक बहुत बड़ी दुकान में कोई बड़ी कंपनी का सेल लगा हुआ दिखा। तो मैं बोला ये दुकान मेरे को करनी है। आप सोचिए, खाली आप विजन को बड़ा करिए, आपको हर सफलता मिलेगी। मैं इमीडिएट वो जो प्रॉपर्टी का ओनर था उससे मिलने गया और मैं सोचा था, मेरे को मालूम था कि हो सकता है इतना बड़ा आदमी, वो कलकत्ता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आदमी, जॉन मेंटोस उनका नाम है। तो मैं उससे मिलने गया और वो प्रॉपर्टी फिर मेरे को भाड़े में मिल गई। और वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद मेरा जीवन का पूरा टर्न अराउंड चालू हुआ। तो इससे आपको यह सीख मिलती है कि आप कभी भी फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ डूबने का, ये सब नहीं सोच के आपके जीवन में जो आए आप उसको बोलिए। जो मैं अभी इतना फियरलेस होके बोल रहा हूं, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये क्या, ये यहां तो खाली बड़ी बड़ी डेटा की बातें होती है, ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को फियर ऑफ रिजेक्शन और मेरा कोई ईगो नहीं है। अगर कोई आप ताली बजाएं नहीं बजाएं, आप मेरे को एक्सेप्ट करें नहीं करें, वो ईगो और फियर अपने को खत्म करना चाहिए लाइफ में। कभी कभी हम प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाते हैं सही, कि हमारे पास इतने काम होते हैं
कि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अपने को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपना सिस्टम को ठीक करने का। मेरे ख्याल से मैं अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग हैं, जो मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया टॉप के 100 अपने सब की लाइफ, ये दुनिया के जो 100 पावरफुल लोग हैं वो चेंज कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खाली ग्रोथ की बात नहीं करके, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपको एक ऑफिस जाने के लिए मेरे ख्याल से एक आदमी को 1 घंटा रास्ते में जाम में फंसना पड़ता है। हम किस ग्रोथ का बात कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरा आपके मन से निवेदन है, सारे जो 100 लोग, जो आज एक पुतिन ने एक डिसीजन लिया यूक्रेन पे बॉम्ब गिराने का, और उससे पूरा दुनिया का तेल का दाम बढ़ गया और कितने लोग महंगाई से उससे त्रस्त हुए। तो आप समझ पा रहे हैं कि दुनिया में केवल 100 लोग सोच लें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इस प्लेनेट का हमको थोड़ा अच्छा करना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मालूम नहीं ईश्वर ने कैसा बनाया है कि हर समय ऐसे लोगों को राजगद्दी दी गई है जो इस बारे में नहीं सोचते हैं, जो भलाई, मासेस की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरे ख्याल से मालूम नहीं कब बुद्धा टाइप का कोई राजा आएगा जो पृथ्वी पर राज करेगा और हमको एक अच्छा जीवन मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे ख्याल से, ये सारा पॉइंट्स मैं प्रेजेंटेशन में, और आज मैं इसको लिंक्डइन में भी अपलोड भी करूंगा, तो वो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से अब समय है कि अपने थोड़ा क्वेश्चन आंसर बात करें, और फिर मैं यही बोलूंगा कि मैं जहां पे भी जाता हूं अपने बहुत संकोची टाइप के लोग हैं। मेरे ख्याल से कोई हाथ नहीं खड़ा करता है क्वेश्चन करने के लिए, कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। इतना संकोच अच्छा नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ, माइंड को कैसे अपने इवॉल्व करें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए या शरीर अच्छे हेल्थ के लिए, कोई भी मेरे से क्वेश्चन करेगा, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम के लिए, तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो अगर नॉलेज है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा जवाब देने में। प्लीज प्लीज हाथ उठा के कोई भी बात कर सकता है। मेरा लाइफ ना रोलर कोस्टर के तरह चला है। मेरा 2000 में, मेरे ख्याल से, हाँ 2000 में मैं कलकत्ते में, मेरी 7-8 दुकानें थी, जो कलकत्ते का टॉप रिटेलर था मैं। और मेरी वो टाइगर सिनेमा में एक दुकान थी, वो मेरे ख्याल से उस समय पर स्क्वायर फीट सेल शायद 4-5 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ मेरी सेल थी वहाँ पर उस समय। और वो वहाँ पे सीपीएम का राज था, और वहाँ पे मेरे यूनियन प्रॉब्लम हो गया, और मेरे को वो सब छोड़ना पड़ा अचानक। और मेरे को उस समय भी मैं एकदम अटैच नहीं था। मैंने रातों रात डिसीजन लिया, मेरे को जीवन में सबसे पहले शांति चाहिए, तो मैंने इमीडिएट वहाँ से सारा बिजनेस को, मेरे पर शायद मैंने लोन भी ले रखा था बहुत सारा, मैंने इमीडिएट सारा छोड़ा और मैं यहाँ दिल्ली ऑफिस चालू कर दिया, और एक पैसा सबका चुकाया, और वापस से मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया। और दिल्ली में उस समय वैल्यू रिटेल में कोई था नहीं, तो मेरी कंपनी वापस बहुत अच्छी चलने लग गई। तो और फिर 2007-8 में मेरे को बेचना पड़ा विशाल मेगा मार्ट वाला ब्रांड, और उस समय भी मेरे बहुत प्रॉब्लम आया। 900 करोड़ का लोन था, लेकिन एक पैसा राइट ऑफ रिकम्पेंस के साथ सारा बैंक का पूरा दिया, और वापस अभी मेरी कंपनी वापस बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर आप धीरज रखते हो, आप अपना माइंड को ठीक रखते हो, माइंड पूरा जुड़ा हुआ है हेल्थ से। अगर मैं उस समय, जब मेरी कंपनी बिक रही थी, जब मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, अगर मैं डेली जिम नहीं जाता, हो सकता है मैं टूट जाता। तो मेरे ख्याल से माइंड और हेल्थ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो अपने को हर समय एक मजबूत माइंड के लिए, अपने को हेल्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सो थैंक यू सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपने जैसे बोला कि आपके बच्चे ने आपको ज्वाइन किया और देयर इज ऑलवेज अ जनरेशन गैप, तो ऐसा क्यों होता है कि नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को अपनाने से कतराती है? इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ये जो ढोलकिया जी बोल रहे थे, कृष्णा या प्रकृति या ईश्वर, शायद किसने ये बिसात बिसाई है, तो उसने हर जगह ह्यूमन लाइफ में ऐसी चढ़ाई दी है हम लोगों को। तो हर जगह अगर आपको ये कंट्राडिक्शन नहीं मिलेंगे, तो उसका ये नाटक कैसे चलेगा? तो उसने इस नाटक के लिए हर समय कंट्राडिक्शन पैदा किया है कि बच्चे का सोच ऐसा दिया। हम लोग बच्चे के लिए इतना माना लव करते हैं अपने चाइल्ड को,
और उसका ऐसा कंट्राडिक्शन रहता है, तो बस ये सब ऊपर वाले का या कोई जो क्रिएचर है उसका बनाया हुआ लॉ है, लेकिन इसको भी हम बहुत अच्छे से ढंग से हैंडल कर सकते हैं। हमने जैसे प्रूफ किया कि यस आई एम राइट, और वो धीरे धीरे अब बच्चे को एकदम समझ में आने लग गया, और अभी मेरे ख्याल से 5 महीना हो गया मेरा बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, और अब हम 1 और 1 मिलके 11 की तरह काम कर रहे हैं। Okay, thank you. Sir, We can move to the next. excuse me, sir. Good We are afternoon. running short of the time, so we can have question later. Yeah. Thank you so much, sir. Your vision and mission is both commendable. थैंक यू एवरीवन। May I now request our session chair, Mr. Manoj Jain, to summarize the session for us. So good afternoon, everyone. I'm just standing between you and your lunch, so I'll not take much time. But though contrast speakers was here, while Mr. Agrawal was talking more on your health and mind, as an individual, what best you can do and how best you can achieve. When the individuals are good, the society will definitely be the good. And I think Rajesh has spoken on that ESG, and I think he has beautifully summarized when individuals and the collective. So he was talking about environment, social, and economic dimensions. I think when these two merge together, we can have a wonderful world. So I'll not take much of the time. Thank you very much for both the speakers. And I should say thanks for the selection committee who has chosen the two contrast. From morning I was observing, in both the sessions you have two contrast speakers, and I'm sure the audience must be enjoying it. So not taking much of your time, let's break for lunch. I think that's what is a, yeah, okay, thank you. Thank you, sir. I now request Mr. Ashok Jain, plant head from JSW Steel, to present a memento to Mr. Ramchandra Agrawal. Sir, your mission and vision of a quality life is what many of us seek as well. Your fight for a change in the system is surely commendable. I now request Mr. Dinesh Bhatt, Vice President, Complex Head, and Mr. Hridesh Upadhyay, Associate Vice President and Cluster HR Head of SRF Limited, Indore, to present a memento to Mr. Rajesh Mittal. So your ESG philosophy and conscious growth is the demand of the day. And as entrepreneurs, we need to incorporate the same in our businesses. We now break for the scrumptious lunch, and we look forward to have you all with us for the upcoming sessions with our learned speakers. We also have a session with the famous stand-up comedian, Mr. Atul Khatri. So let us come back for a daily dose of laughter. Thank you.